नहीं, मैं बोल दूंगा, मैं तो ज्यादा बढ़िया रहता है मेरे। Hello and welcome to another video conversations on Awaz Haqiqat. This translates to the voice of truth. Today or tonight, depending on whichever part of the world you're looking at us, you're seeing us from, I'm going to talk about what is comedy, what is satire, what are the boundaries within which we can actually pull out jokes. And there have been a recent flurry of events that have occurred, and I'm joined tonight by two very famous stand-up comedian in Melbourne and Adelaide in Australia as well. Good evening, Chetan and Raj. But before I formally introduce my guest, I'd like to acknowledge the traditional owners of the land on which I am coming from tonight. I come from the land of the Kulin Nation, and I would also like to acknowledge the traditional owners and the respects elders of past, present, and emerging. I'm joined by Chetan Singh, aka Delhi Boy. He's a Raw Comedy Nationals runner-up. He had an opening act for Zakir Khan, Abhishek Upamani, and Akash Gupta, and has been touring Australia with a solo and line of shows as part of multicultural comedy shows all around Australia for the last 5 years. Good evening, Chetan, and thank you for joining me. Thank you. Thank you for calling me famous. You are. Thanks, Chetan. And I am also joined by Raj. Raj Chopra is a stand-up comedian whose natural wit and infectious humor have lit up some of Australia's most iconic stages, including Hamer Hall and the Palais Theatre in Melbourne. With a knack for touring everyday movement into laugh-out-loud stories, Raj has earned his stripes opening for comedy heavyweights, captivating audiences with his relatable charm and razor-sharp delivery. On that note, good evening, Raj. Thank you for joining me. नमस्ते नमस्ते। ये किससे लिखवाया भाई राज? ये एक नया AI आया है सिर्फ कॉमेडियन के लिए। अच्छा अच्छा ओके। आप लोगों को तो जैसे मैंने बताया कि अभी कुछ इवेंट्स हुए थे जिसमें बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो गया था, कुछ उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने इंटरप्रेट किया। So my first question to both of you is, in your opinion, why does comedy or satire tend to offend people? Chetan, I'll start with you. Raj, I'll come to you later. Why does it offend people? That's a great question. What I feel is मतलब I think ये बात हिंदी में बोलनी चाहिए क्योंकि ये इंडिया में हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग सबसे ज़्यादा ऑफेंड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इंडिया में लोगों के पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है, ठीक है? तो उनके पास ज़्यादा कुछ करने को है नहीं एंड दे आर लुकिंग फॉर देयर नेक्स्ट असाइनमेंट। अ लॉट ऑफ दीज़ पीपल आर लुकिंग फॉर देयर नेक्स्ट असाइनमेंट कि हम क्या करें लाइफ में, जो हम थोड़ा इम्पैक्ट आजकल हर किसी को हीरो बनना है, हर किसी को मीडिया में आना है, हर किसी को अटेंशन चाहिए। दिस इज़ Zakir Khan actually said this to me in person. He said the previous age, the 90s was the age, or 90s or early 2000 was the age of क्या बोलेंगे stars. This is the age of followers and influencers. तो जो फॉलोअर है किसी का वो भी अपने आप में एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, वो एक कमेंट भी लिखता है ना, उसको उस पे भी लाइक्स चाहिए। तो आई फील पीपल आर यूजिंग दिस मीडियम टू गेट ऑफेंडेड सो दे कैन गेट सम अटेंशन। तो मेरी मेरी इसमें बड़ी एक सीधी-सीधी ओपिनियन है इस चीज़ को लेके। इफ यू डोंट लाइक अ पीस ऑफ कंटेंट, you have a choice, don't watch it. Like even specifically this content that recently that was paid content. People pirated it and put it on shorts and that's how it got to other people. तो आप लोग एक तो पायरेट उन लोगों को किसी ने नहीं पकड़ा जिन्होंने सालों ने पायरेट करके उसको लगाया वहां पर, और आप उस बंदे को पनिश कर रहे हो जिसने पेड कंटेंट पब्लिश किया था जिसपे लोगों के पास चॉइस थी देखें या ना देखें। I mean, this is ridiculous. But anyway, this is my opinion on why people like to get offended. Everybody is trying to make an impact and get a piece of this pie. Right. You raised an important point, Chetan. लेकिन वो जो statement specifically that individual had said, I'll come to it later. राज, आपको क्या लगता है कि जो अभी का कंटेंट बन रहा है उससे लोग ऑफेंड क्यों हो जाते हैं? मेरे ख्याल से तो देखो, क्या कहते हैं, बहुत एक छोटा सा तबका है जो क्या कहते हैं ऑफेंड हो रहा है, लेकिन ये है कि मीडिया उसको जाके उछाल ज्यादा देता है। उन लोग नेगेटिव पब्लिसिटी को हमेशा पब्लिसिटी ज्यादा मिलती है। जो देखने जा रहे हैं, जितने अगर आप सोशल मीडिया पे भी कमेंट देखोगे तो 1000 लोगों ने पॉजिटिव कमेंट करे थे और 5,000 ने नेगेटिव करे थे। तो पॉजिटिव वाले भी बहुत थे, नेगेटिव वाले वो सेम लोग ही जो कमेंट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं।
और क्या कहते हैं, जो चेतन बोल रहा है कि मतलब पैसा दे के आप वो देख सकते हो चीज, तो पहले उस पे एक गाइडेंस ऑलरेडी लगी हुई है। अब अगले बंदे ने जब पैसा दे के बोला भाई जो पैसा खर्च कर रहा है इसका मतलब वो एंजॉय करता है वो चीज। इंडिया वाले तो वैसे ही पैसा नहीं खर्च करते जिसमें मजा ना आए उनको। अब जिसमें वो पैसा खर्च कर रहा देख रहे हैं, तो इसका मतलब बंदा एंजॉय कर रहा है, वो डार्क कॉमेडी कर रहा है, मोहब्बत वाली कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है। ऐसे तो इंडिया में क्या कहते हैं, इतनी पॉर्न साइट्स हैं, लोग पैसा दे के जाते हैं ना उसके ऊपर, मेंबरशिप ले लेके जा रहे हैं। तो आप उसके ऊपर भी जाके दंगा कर दो, लेकिन ये है कि मतलब वही है जो चेतन बोल रहा है, टाइम पास है। सारी जनता चाह रही है कि भाई किसी तरह से किस एंगल में मुझे थोड़ा सा वो मिल जाए, बस फेम, या मैं हाईलाइट हो जाऊं, गाली बकने से होऊंगा या बिना गाली सपोर्ट करने से होऊंगा, जहां बहाव है। कई लोग तो हर पोस्ट पे जाके डिफरेंट, एक बंदे ने हाईलाइट करी थी, एक बंदे ने जाके लिखा है, एक पोस्ट पे गाली बक रखी है, एक पे सपोर्ट कर रखा है, कि देखूं कहाँ पे लाइक ज्यादा मिल रही है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। मतलब तो कोई ये मॉरल रियलिटी है। मॉरल कंपास ही हिला हुआ है इन अ बेसिक सेंस की, कहीं से हाँ हाँ, फेम आ जाए। ये तो मिला जमाना, हुआ है या छोटे इट छोटे डजंट बच्चे, हर एग्जिस्ट? आदमी लाइक लाइक और लव, बस यही चाहिए, बस किसी तरह से मिल जाए। दिस इज द एज ऑफ लाइक्स। एग्जैक्टली। जो अगला सवाल ये मुझे भी आप लोगों से जानना, बिकॉज यू बीन द एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड, कि ह्यूमर और सटायर में कोई डिफरेंस है कोई, या दोनों सिमिलर है? हम दोनों को अलग वर्ड्स कैसे देखते हैं? राज, मैं आपसे शुरू करूंगी, चेतन आई विल कम टू। मेरे देखो, मेरा एक्सपर्ट वगैरह तो मैं कुछ नहीं हूँ उस फील्ड में, मैं तो इतना ज्यादा बता नहीं सकता उसके ऊपर, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से अभी जो सटायर के ऊपर कंट्रोवर्सीज होती हैं या जो भी होता है, अगर आप सटायर देखोगे तो पुराने जो शेर है मिर्जा गालिब के और उस सब के, मतलब 90% सटायर ही होते थे। ठीक है, जो मिर्जा गालिब का वो एक क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेर्स हैं, मतलब वो मैं बोलना नहीं चाहता रिलीजियसली है वो, लेकिन मतलब वो इतना टाइम से यूज हो रहे हैं, उसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं करता। तो सटायर बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है, आज ही कोई एग्जिस्टिंग नया तो नहीं आ गया है। तो आज लोग ऑफेंस ले रहे हैं उसके ऊपर, पिछले 50 साल से तो कोई नहीं ले रहा था ऑफेंस। तो पहले भी, उससे पहले अकबर के जमाने से मतलब वो कहानियां चलती आ रही है, बीरबल बैठता था, तंजी कसते थे वो लोग कि हम्म। इसने ये कर दिया, वो तो सटायर तो पहले से चलता आ रहा है। और ह्यूमर तो देखो प्योर जोक है, कि किस चीज पे आपको हंसी आ रही है। सटायर तो मोर एजुकेशनल टाइप हो जाता है, कि लोगों की आंखें खोलने के लिए, कि आसपास वाले खड़े हैं। और सटायर लोग पहले उन पे बनाते थे जो बर्दाश्त कर सके उसको, कि सामने वाले के ऊपर जाके मैं सटायर बनाऊंगा ताकि इसको पता चले कि क्या कहते हैं भाई तू क्या गलत कर रहा है। जैसे अकबर उठ के घूमने जाता था रात को, कपड़े उतार के देखने, भाई मैं नॉर्मल आदमी बन के जाऊं, कैसा लग रहा हूँ, लोग गाली बक रहे हैं, राजा को नहीं बक रहे। अब अकबर गोली तो मार नहीं देता जाके उनको, तो वो खुश होता था सुन के कि चलो मुझे पता चला है, वो क्रिटिसिज्म है। और ह्यूमर तो नॉर्मल जोक है, वो बचकाने जोक भी हो सकते हैं, हम लोग भी मारते हैं कई जोक, बिल्कुल ही बचकाने होते हैं वो, उस जी। पे भी लोग हंस लेते हैं। आपको हंसी आ गई तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं आई। हम्म। तो इतना डिफरेंस है, बाकी ज्यादा तो मेरे ख्याल से फोकस ज्यादा डाला जा रहा है, जो दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं सदियों से, अभी हाईलाइट हो गई हैं 2 साल में, मतलब तो बस वही है, और कोई रिलेशन तो नहीं लग रहा मुझे। Agreed. वो बीरबल वाला तो मैंने भी सुना, उनका तो रोल ही था टू ब्रिंग इन जेस्टर इनटू द कोर्ट। एग्जैक्टली। चेतन राज ने तो पॉइंट रेज किया है, और ये हमने, ये कॉमिक्स तो हमने पढ़ा ही हुआ है, बट आज के डेट में हाउ इज इट सिमिलर और डिफरेंट? यार मेरे को जो पता है, लाइक सटायर इज ऑलवेज बीन अबाउट लाइक, सो आई स्पोक टू कुणाल कामरा एट लेंथ अबाउट इट कि व्हाई डज ही डू दिस काइंड ऑफ कॉमेडी, एंड ही सेड this has been the rule of comedy, as Raj said, from ages, like being anti-establishment is a form is has been a क्या बोलेगा form of comedy. It's a way of doing comedy. There are certain kind of people who will always write about it or joke about it, and it's their way of expressing the problems that exist. या। हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं और लोगों के तरीके होते हैं उनको हाइलाइट करने के। कुछ लोग न्यूज़ में पढ़ के बताते हैं, कुछ लोग आर्ट फॉर्म के थ्रू बताते हैं, कुछ लोग लोग कहीं जाके बैठ जाते हैं, धरना करते हैं। So it's just another way of expressing that there's nothing else to it. Um, एंड देयर वाज़ अ रीसेंट डिबेट कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क है, जिस वजह से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये फॉरबिड करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। 100 इंडिया में 100% फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। आई डोंट नो इफ एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस। हमको लगता है कि है पर नहीं है। देयर आर सम रूल्स अराउंड इट, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़
again, I think that's probably too much detail for this conversation, but it roots from what happened in 1947, कैसे इंडिया का पार्टीशन हुआ और कैसे गवर्नमेंट बनी and all that. But satire is nothing but that. Like if कितने साल आप सोचो एक बार, मुझे एक बार बताओ, people like Kunal Kamra, Manik Mahana and all these other people, they've been doing comedy for what, 8 years, और वो कितनी बार ट्रबल में आते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, हर वक्त तो वो जेल में नहीं रहते. So I feel when this kind of things happens, it's pre-decided. It's like it's like कि कुछ they decide कि भाई इस टाइम पे किसी इंसान को टारगेट करना है. It might not even be nothing to do with the government. It might be a sect of a group of people who decide कि भाई इसको भी टारगेट करना है. And this sort of controversy gets created, and a couple of people who are doing really well in their field suddenly gets targeted, and suddenly it's their downfall, and then they go into hibernation for a couple of years. I To me, satire is nothing but a way of expression, nothing else. Right. Thank you. मुझे लगता है this kind of flows into the next question that I want to ask you. When you're on the stage as a stand-up comedian or a stand-up artist, to be generic about it, कोई limitation या boundary है around freedom of speech when you're just trying to be realistically funny or just funny? चेतन, आप बताओ पहले. देखो, boundaries, like how do you decide what is the boundary? Like who decides that in art? In my mind, art is boundless, right? Art का कोई, there is no like if somebody comes to me, like कितनी बार लोग होते हैं naive होते हैं, right? मुझे बोलते हैं देखो भाई, कॉमेडी ऐसे होती है, जो कपिल शर्मा करता है ना वो कॉमेडी है, और जो बस्सी करता है वो कॉमेडी नहीं है. अब भाई आपने कैसे डिसाइड कर लिया? आर्ट की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि अगर एक तबका है, एक ऑडियंस है जो उसको देखना चाहती है, तो वो आर्ट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज वो आर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती. जैसे राज भाई ने पहले बोला, समय रैना टाइप लोग जो कॉमेडियंस हैं, उनकी ऑडियंस है तो वो एग्जिस्ट करते हैं, अगर वरना वो कुछ भी बकता रहेगा, कोई नहीं आएगा देखने. ठीक है, तो मेरे मेरे हिसाब से आई डोंट फील देयर इज एनी बाउंड्रीज. द बाउंड्रीज आर सेट बाय द ऑडियंस एंड द परफॉर्मर. परफॉर्मर डिसाइड्स, मैंने लोगों के सामने रखा, आपको पसंद आया, आपने देखा, आपको नहीं पसंद आया, वो कॉमेडियन फ्लॉप हो गया या वो आर्टिस्ट फ्लॉप हो गया. इट्स एज सिंपल एज दैट. जो बाकी जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो जनरली जब कोई और इसमें कूदता है तो सिर्फ इसलिए कूदता है क्योंकि दे फील थ्रेटन्ड बाय समथिंग, दे फील लाइक कि इससे कुछ नुकसान हो रहा है, और दे वांट टू बी इन द न्यूज अगेन, वांट दैट पीस ऑफ दैट पाई, दैट पॉपुलैरिटी समहाउ, राइट? कि हम ये कर रहे हैं, हम ये ला रहे हैं, हम इस सभ्यता को बढ़ावा दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय सभ्यता क्या है. That's all there is to it. Nothing else. Otherwise, art is boundless. थैंक्स चेतन. राज, आपका क्या कहना है कि कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो? आपको लगता है कोई बाउंड्री होनी चाहिए मेरे कंटेंट में? देखो, डिपेंड करता है, क्या कहते हैं, जो चेतन ने बोला 100% मैं तो उस बात से एग्री करता हूँ. ऐसी कोई फ्रीडम में कोई, मतलब क्या कहते हैं, हर आदमी अपनी चॉइस ऑफ लाइफ है. अब मैं अपने घर पे क्या करता हूँ, कैसे रहता हूँ, क्या कहानी करता हूँ, कैसा मेरा बॉडी वेट है, मेरा एक्सरसाइज करनी है, मुझे शराब पीनी है, मैं खुद डिसाइड करता हूँ. तो मैं भी यही खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे बोलना क्या है. अब मेरे को अगर सामने वाला क्रिटिसाइज करता है उस बात पे, आप मतलब क्या कहते हैं, जो नॉर्मल ये बात होती है कि यू कैन एग्री टू डिसएग्री ऑन समथिंग, ये विच इज ओके. सम पीपल विल कम अप एंड से डोंट से दैट, मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, नहीं लगा, अच्छा, खत्म करो कहानी भाई. अब इतनी ज्यादा कहानी बढ़ाना तो ठीक नहीं होता मेरे ख्याल से. बाकी फ्रीडम, मैं पर्सनली आई विल से दैट यू नो इज इंडिविजुअल्स डिसीजन एज वेल, कि मैं कितना इन्फ्लुएंशियल हूँ और मैं किस हिसाब से वो बोलूं. अभी मान लो, मतलब अगर मैं अपने हिसाब को बोलूं तो मेरे कहने से 70 चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद मेरे बच्चों पे पड़े. मैं बहुत सारी चीजें वीडियो पे नहीं बनाता जो मैं बोल सकता हूँ. अगर मैं कॉमेडी करता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे क्या बाउंड्री रखनी है, क्योंकि रीजन है कि मेरे बच्चे देखेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इन लोगों को ये लगेगा कि मेरा ये फादर ऐसे बात करता है या बाप ऐसे बात करता है, तो वो दे माइट गेट इन्फ्लुएंस इन दैट वे. तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरी बाउंड्री क्या है. ऐसे क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से वंस यू बिकम रिस्पॉन्सिबल, दो सिक्के हैं उस पहलू के. अगर आप इतने बड़े लेवल पे हो, और अगर आप, मतलब देश आपके लिए, क्या कहते हैं, एक जैसे राहुल कोई, मतलब क्या कहते हैं, बड़े नाम है अगर इंडिया में, उन लोगों के लिए लोग, उनको हजारों लोग अगर फॉलो कर रहे हैं, तो आप अगर एक कोई चीज ऐसी करोगे
हो सकता है कि दे माइट गेट इन्फ्लुएंस बाय दिस, क्योंकि वही हम लोग घर पे भी देखते हैं, हम लोग क्योंकि एक दूसरे से इन्फ्लुएंस तो होते ही हैं। हम्म, तो मेरे ख्याल से मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट करता है, करना चाहिए, लेकिन लोगों को खुद भी डिसाइड करना चाहिए कि भाई मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और मेरी क्या वैल्यू है मार्केट में। right. अब कल को मान लो मैं और चेतन यहाँ पे कॉमेडी करते हैं, ठीक है, अब हम कोई इंडियन वेडिंग में बुला लें यहाँ पे, अब वहां जाके हम वाले स्टाइल की कॉमेडी करते हैं जो बिल्कुल डार्क हो, और ये रियलाइज ही ना करेंगे भाई यहाँ कौन बैठा हुआ कौन नहीं बैठा हुआ, और बोले हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर वो क्रिटिसाइज करे तो आप हमें डिसाइड करना है कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं है। लेकिन हाँ मतलब क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्योंकि हम सब एक रूल ऑफ द लॉ में रहते हैं। तो कई बार वो अपने लिए शायद, जैसे मैं हूँ, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इनकॉर्पोरेट करूंगा, लेकिन मेरे बच्चे अगर ऐसे बोल रहे होंगे तो मैं उनको जाके जरूर डिसिप्लिन करूंगा कि ऐसा नहीं बोलना। तो बोले अबे कल तो तू फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा था, तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ चला गया। नहीं, कैन आई ऐड समथिंग टू इट? आई एग्री, लाइक राज ने बात बोली तो मेरे दिमाग में आया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इवेंट में डिफरेंस है, और इवेंट और एन गैदरिंग, राइट? फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टिल एग्जिस्ट, आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको करना है ऑब्वियसली, बट आप अपने मम्मी पापा, जिस तरह आप अपने मम्मी पापा के सामने जाके गाली नहीं देते पर आप अपने दोस्तों के सामने देते हो, बिकॉज देर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू इट, देर इज एन ऑडियंस फॉर दोज गालीज एंड स्टफ। आप अपने दोस्तों के आगे गाली दोगे ना यार, अपने माँ बाप के आगे गाली नहीं दोगे, आप उस तरीके से बात नहीं करोगे, तो वो उतना दिमाग तो आई थिंक परफॉर्मर के पास होना चाहिए कि कहाँ पर कैसी हम्म। बात करनी है, ठीक है? अगर हाँ। तभी मैंने ये बात बोली कि यूट्यूब पे जाके पेड कंटेंट अगर आप डार्क कॉमेडी का क्रिएट कर रहे हो, आई थिंक इट्स टोटली फाइन, लाइक इट्स ओके। हम्म। आप अगर एक कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बैन करती है डार्क कॉमेडी, तो आप नहीं कर सकते, राइट? अगर कॉन्स्टिट्यूशन बैन नहीं करती है तो आप कर सकते हो, उसके बाद उनकी मर्जी है कि वो लोग देखना चाहें या ना देखना चाहें। अभी किसी कॉमेडियन ने एक जोक किया था, कहता है कि इंडिया में कहती निवेदिता प्रकाशन का जोक है, बहुत ही बढ़िया, यू शुड वॉच इट, आई विल प्रॉब्ली नॉट डू जस्टिस टू इट। शी सेड इंडिया में पॉर्न देखना बैन नहीं है पर बनाना बैन है। वो कहती इवन डजंट दिस गो अगेंस्ट द होल मेक इन इंडिया? लाइक हाँ। एक तरफ बोल रहे हो मेक इन इंडिया, तो आप जो चीज कंज्यूम कर रहे हो वो साला बनाना क्यों नहीं चाहते इंडिया में? क्यों नहीं कर सकते लोग? तो आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ दैट कि you should obviously be aware of your audience. If you're performing in a political event or if you're performing in front of children, you Hmm, won't do dark comedy. That's stupid. Don't do that. absolutely. मैंने यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहती हूँ, बिकॉज माई Mhm. मुझे जो आप लोगों से एक्चुअली पूछना है कि डज दैट मीन कि अब क्या क्लीन कॉमेडी हम ले ही नहीं सकते? हमें जरूरी है उसमें स्लैंग घुसाना या ऑफेंसिव कुछ घुसाना सो दैट इट मेक्स अस लुक कूल इन फ्रंट ऑफ द न्यू जनरेशन? जो भी मतलब मोस्ट Mm. ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव सीन, सारे नहीं, कुछ कुछ होता है कि 5 मिनट के बाद आइकन मैं सुन नहीं सकती, बिकॉज वो सारा गोज डाउन द हिल वेरी सुन। तो क्या Thanks. क्लीन कॉमेडी की कोई स्कोप है ही नहीं? जस्ट बिकॉज मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कुछ भी घुसेड़ दूं उसके उसमें इन द नेम ऑफ कॉमेडी? इज दैट व्हाट वी आर अल्यूडिंग टू? राज, मैं आपसे पहले स्टार्ट करूंगी। देखो मैं तो इस बात पे ये बोलूंगा, अब वैसे फॉर एग्जांपल गाली गलौज की बात होती है कि गालियां बकी जाती हैं, उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो कंट्रोवर्सी हुई है कि क्या जोक था, वो किस चीज से रिलेटेड था, सेक्सुअलिटी जोक था या क्या था, ठीक है। अगर आप देखोगे इंडिया में, आप गांव से गांव जगह में चले जाओ और पढ़ी लिखी से पढ़ी लिखी चले जाओ, दिल्ली से लेके अगर 80 किलोमीटर का बॉर्डर है मेरठ पे, वहां पे छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़े बच्चा बीसी एमसी से ही बात करता है, ठीक है। अगर आप वो गालियां सुनोगे जो ये सारी सारी जो गालियां हैं, वो गालियां भी तो पेरेंट्स के लिए ही बन रही है ना। अभी क्या कहते हैं, जो जिस तरह के वर्ड यूज होते हैं, मतलब मैं तो यहाँ बोल भी नहीं सकता वर्ड। अगर आप देखोगे दिल्ली के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी वो ऐसे ही यूज कर रहे हैं वर्ड, ठीक है। नॉर्मल यूज होता है, कॉमन घरों में यूज होता है हर बात पे। पंजाबियों में तो कहावत है कि भाई मैं बीसी के बिना तो बात ही नहीं होती। तो वो सारी गालियां तो आप पेरेंट्स के लिए, बहनों के लिए दी जा रही हैं, और वही लोग यूट्यूब पे जाकर कमेंट कर रहे हैं कि भाई इसने ऐसा बोल दिया, और वो साथ में गाली भी लिख रहे हैं, वही गाली लिख रहे हैं कि बीसी एफसी इसकी, और तुम पेरेंट के बोल रहे हो कि नहीं यार पेरेंट की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो तू भी तो कर रहा है भाई किसी की। अब वो मतलब क्या कहते हैं, इंडिया में उस चीज का मुद्दा बना दिया। अगर आप ग्राउंड रूट पे देखोगे तो अगर जिस बात पे बात हुई है उससे ज्यादा डबल मीनिंग बातें और गालियां तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में है। और वो 12-12 13-13 साल के बच्चे बोल रहे हैं। यहाँ पे मैंने बच्चे को सुना है, ये ऑस्ट्रेलिया है,
यहाँ पे इंडियन बच्चों को मैंने वो गालियां सुनते देखा है जो मैं यूपी में सुनता था मेरठ के बच्चों स्कूलों में। तो इतना कोई मतलब क्या कहते हैं हल्ला मचाने की जरूरत तो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि भाई ये स्पेसिफिक बोल दिया माँ के ऊपर या बहन के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर। अरे आप तो खुद ही बोलते हो सुबह शाम, हम तो खुद ही यूज कर रहे हैं। जी। कौन सा ऐसा इंडिया में लड़का होगा या लड़कियां भी बहुत है। अब तो पिक्चरें आई हैं, वो एक पिक्चर आई थी वीरे दी वेडिंग, आप उसमें देखना करीना कपूर और उन्होंने क्या क्या गालियां बकी हैं। क्या काजोल की एक पिक्चर आई थी, वो क्या गालियां बक रही है, वो भी सारी गालियां तो पेरेंट्स को ही बक रहे हैं ना। वहां पे गाली कोई दोस्तों के लिए तो होती ही नहीं है, 90% गालियां तो पेरेंट्स के लिए ही है। तो उनको तो कोई वो नहीं कलेश करता। इसके ऊपर जरा सी कहानी बना दी, और इसने तो पूछा भी इंग्लिश में क्वेश्चन था, हिंदी में तो पूछा ही नहीं। तो क्या राज, हम ये कूल दिखने को करते हैं कि भाई एक गाली इधर उधर फेंक दी तो मेक्स मी लुक कूल, ये हो गया कि देखो मतलब मैं पर्सनली बताऊं आपको क्या कहते हैं, मैं जिस हाउस होल्ड में ग्रो हुआ हूँ, मैं पंजाबी हूँ खुद, हमारे यहाँ पे ये गालियां नॉर्मल लोग बोलते हैं, निकलती हैं, कॉमन पार्ट होता है उस चीज का। तो बच्चे भी वही सीख जाते हैं, हम लोग भी वही बोल रहे हैं। तो फिर ये हो जाता है कि बच्चे जो हैं वो इस मेंटालिटी से ग्रो रहे हैं कि मैं बड़ा हो गया भाई साहब अब गाली बक सकता हूँ। हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं ना, डोंट यूज द एफ वर्ड। ठीक है, अब वो एफ वर्ड बच्चा बोल रहा है लेकिन पीछे पीछे हंस भी रहा है कि मुझे पता है एफ वर्ड क्या है, तेरे सामने नहीं बोलूंगा। एक वो गाना है ना, 24 years लिविंग नेक्स्ट डोर टू एलिस, एलिस हु द एफ इज एलिस। वो एक गाना है बहुत पॉपुलर, तो मैं अपने बच्चों को भी सुनाता हूँ। मुझे बार बोलता है वाला गाना लगाइयो, फिर वो मम्मी पापा को देखता है कि एफ वर्ड बोलना है नहीं बोलना। तो उसको कूल लगना है कि मैं, उसको लगता है कि कूल है, इसने मुझे मना करा है बोलने को। तो कूल वूल है क्या, मतलब बच्चों को अच्छा। जनरेशन देखो, जो यंग जनरेशन है, जिस चीज को आप क्लोजेट में रखोगे अगर वो ओपनली आएगी, लोग वीडियो बोलेंगे तो लोगों को पसंद आएगी आएगी। पहले गालियां देना बंद होता था, अब आप ओटीटी पे जाओ, नेटफ्लिक्स पे सेक्रेड गेम्स देखो, हाँ, कौन सा चाइल्ड लॉक लगा हुआ उसमें। दुनिया का ऐसी कोई गाली नहीं है जो ना बक दी हो उन लोगों ने उसके अंदर। और वो लेवल की बकी होंगी कि नॉर्मल आदमी सुन भी नहीं सकता घर में बैठ के। सही बात है। Thanks, Raj. Chetan, what are your views? Uh, so I think your question is basically कि clean comedy के लिए कोई जगह है कि नहीं, कि have people stopped liking clean comedy, and the answer is no, people have not stopped liking clean comedy. Otherwise ये जो बाकी के comedians हैं जो clean comedy actually में करते हैं, वो अब see the thing is the definition of clean comedy is also different for different people, right? अब जाकिर खान technically does clean comedy, ठीक है? अभी recently उसकी एक रील आई थी जिसमें जाकिर खान ने बोला है कि लोगों को यही प्रॉब्लम हो रही है ना कि फैमिली के साथ बैठ के कॉमेडी नहीं दे सकते, मैं दूंगा तुमको वो कॉमेडी। ठीक है जी, ऐसा वो बोल रहा है। अब इफ यू रियली लुक एट हिज कॉमेडी और ऑब्जर्व करो, वो भी बीच में ही यूजेस ऑफेंसिव लैंग्वेज। आई मीन व्हाट इज ऑफेंसिव लैंग्वेज, उसने एक दो बार गाली दे दी, वही बीसीएमसी वर्ड यूज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एंड फैमिलीज एंजॉय इट टुगेदर, राइट? बिकॉज उनको वो स्टोरी पसंद आ रही है, तो वो उसमें बीच में बर्दाश्त कर रहे हैं, या दे आर ओके, दे अंडरस्टैंड कि दिस इज पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ लाइफ। राज ने बोला भाई पंजाबी हाउस होल्ड्स में ऐसी बातें होती हैं, इंदौर जैसे सिटीज में ऐसे बातें होती हैं, ऐसे ही लोग बात ही ऐसे करते हैं, तो दैट्स पार्ट ऑफ द कल्चर। तो आई थिंक देयर इज डेफिनेटली अ स्पेस फॉर क्लीन कॉमेडी इन द सेंस कि नॉट एवरीवन नीड्स टू गो डाउन टू दोज लेवल्स जो हमने अभी देखा, जो रिसेंटली हुआ, ये मतलब that is, to me, even though I defend them as an artist, I feel it was very cringe. Like the kind of things that are said on those shows, they're very cringe. They're not funny. तो जस्ट आप गालियों पे लाफ ले रहे हो, ठीक है? आपने दो चार बार माँ बहन की गाली दे दी, लोग हंस रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है। देयर इज नो स्मार्टनेस टू दैट आर्ट, राइट? देयर इज नथिंग स्मार्ट देयर, इट्स ऑल जस्ट गालीज। बट there is people like Zakir Khan, there's people like I'm trying to अमित think of टंडन। people like Gaurav Gupta, Amit Tandon, right? They're doing smart stuff. They're spending time in their writing. Like they are using the craft of comedy to present something that people like. So there is, and people are going there in large numbers. So वो तो कभी खत्म नहीं होगा, वो तो हर टाइप की कॉमेडी की हर टाइम पे डिमांड रहेगी। अब किसी को जाके बैठना ही है हर्ष गुजराल के शो में, उसको गालियां ही खानी है, फ्रंट रो में बैठ के जाके लोग बैठते हैं और गालियां खाते हैं, उनको मजा आता है, दे आर एंजॉयिंग इट। लाइक कि जब हर्ष गुजराल उनको गाली दे रहा है, वो हंस रहे हैं, तालियां मार रहे हैं एक दूसरे को, दोस्तों वो ऑडियंस है उसकी। तो क्लीन कॉमेडी की अपनी जगह रहेगी और इस टाइप के लोग भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो डेफिनेटली क्लीन कॉमेडी इज नॉट गोइंग एनीवेयर।
हम लोग खुद मल्टीकल्चरल कॉमेडी, हम लोग खुद वी स्पेसिफिकली मेक इट अ पॉइंट टू पुट सम फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी शोज इन एवरी फेस्टिवल to cater to that audience, and people come there and they enjoy it and we love it. So I don't think that is ever going away. That's good to know. एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप इंडिया में देखोगे, रसल पीटर आज से 20-25 साल पहले आया था, जब इंडिया में वो कॉमेडियन फेमस भी नहीं था। रसल पीटर इतने सालों से इंडिया में चल रहा है, कितने लोगों ने देखा होगा उसको, हम उस समय से देखते आ रहे हैं उसको, मतलब, और वो जिस तरह की कॉमेडी करता है, 90% क्राउड इंडिया नहीं आता है। बॉम्बे इंडियन में आता करी थी उसने, आप वो बॉम्बे का उसका शो देखो, मतलब जो जो बातें उसने बोली है, वो तो लेवल ही एक नेक्स्ट है, मतलब इतना तो कोई सुन ही नहीं सकता। और वो जो एआईबी रोस्ट आया था उसका, क्या कहते हैं, रणवीर कपूर और उनका, उन्होंने तो रिलीजन को नहीं छोड़ा, किसको नहीं छोड़ा, क्या क्या बातें करते हैं वो लोग, रोडीज वाले देख लो। हाँ, लेकिन पर ये है वही है ना, कि ऑडियंस है उसकी लोग, यार उसके। हाँ, हाँ कई लोगों को अच्छा लग रहा है वो देखना चाहते हैं, उनको व्यूज मिल रहे हैं, तो क्यों ना देखे। रोडीज लोग देखते इसलिए थे कि भाई ये लोग गाली बकेंगे इनको, हम, मैंने खुद इसलिए देखा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब ये रोडीज की ऑडियंस है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की भी ऑडियंस है, तो ये दोनों ही चीज कहीं नहीं जाने वाली है। ना ना ना। मुझे हम्म अब मुझे पता नहीं हाउ डू आई रेट इट, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा था ये कॉमेडी देखने की क्या जरूरत है, तुम वो फैमिली रात के 9 बजे जो कॉमेडी शो आता है वो देखो, कितना क्लीन है। मैं कभी हम्म डीप डाउन बिटवीन द लाइंस पढ़ी उनके कॉमेडी, वो क्या बोलते हैं, कभी वो मिसोजिनिस्ट है, कभी वो बॉडी शेम कर रहे हैं, कभी वो औरतों पे हंस, नहीं नहीं, वो फैमिली क्लीन कॉमेडी। मैं कहा, अब तो जैसे चेतन यू मेंशन दिस डेफिनेशन, वो मिसोजिनी भी फैमिली कॉमेडी के नाम पे चल रही है कहीं ना कहीं। वो क्योंकि वो कल्चर में एम्बेड हो चुकी है, तो लोगों को इतनी खराब नहीं लगती। Exactly. But that is the word is very cringe as well at the वेरी, same time. उसको Hmm. प्रमोट, मतलब अभी ओटीटी पे आते हैं ना, हम लाइक यार, एनीवे अब लोग उसको भी देख ही रहे होंगे, नो There डाउट। is an और वो जो जोक audience. भी, और जो जोक की भी हम बात कर रहे हैं, जो उन्होंने जोक किया है उसके ऊपर, शो के ऊपर, वो जोक भी कॉपीड है। वो तो जोक हाँ, ओरिजिनल है ही नहीं, वो तो इंग्लिश कॉमेडियन ने ऑलरेडी पूछा हुआ है शो के ऊपर। वो एग्जैक्टली सेम उन्होंने शो में वो जोक डाला, एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसे ही पूछा है, और वो 5-6 साल पुराना जोक है वो। 5-6 साल पुराना जोक तो भाई वो कन्नन गिल ने करा हुआ है, और उससे भी 5-6 साल पहले एक जो आप शो की बात करो उसमें करा हुआ है। दिस हाँ, जोक उस हैज बीन लड़की ने डन वो क्वेश्चन ही पूछा था, उससे सीधा क्वेश्चन ही हाँ, पूछा था, ये जैसे पॉडकास्ट हो रही है ऐसे, वो इतना वो कॉपी करके मारा हुआ है उन्होंने पूरा का पूरा। to be honest, in my mind, there the reason this guy should be punished is because that joke was so bad, right? उसको punishment इस वजह से मिलनी चाहिए, कितना गंदा जोक क्यों मारा? It wasn't even funny, man. Like, I don't know क्यों, मतलब why is there so much कि वो contention around कि भाई इतना offend कर दिया भाई? मेरे को लगता है कितना बेकार जोक है, इसको काट देना चाहिए था। Actually, edit में क्यों नहीं काटा, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। बट इट्स गुड टू नो कि वो कॉपी, मुझे इतना नहीं लग रहा था ये ओरिजिनल कंटेंट। नहीं 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 नहीं, कॉपीड है। Just Google Kannan Gill हाँ has वो, done this exact same. It's not even a joke. It's a question, right? He's हाँ asked the same question to कौन से एक्टर्स थे वो यार, दो just Google it, you'll see like there is some कोई भूले बिसरे एक्टर्स हैं, उनसे उसने पूछा भी होगा। कॉपी करा हुआ है, उसने भी कॉपी करा हुआ है वो यूके वाले शो हाँ, से। वही कह रहा हूँ, पहले यूके, हाँ देन कन्नन गिल, देन रणवीर लाल। जेल हाँ से हाँ। बेचारा, जेल से बेगया आने गया बेचारा। तो मेरा सवाल ये हाँ। है चेतन, आप लोगों से, जब हम कॉपी कर रहे हैं, मान लो हम कंटेंट यूके से कॉपी कर रहे हैं, अब उनकी तो ऑडियंस ही अलग है, उनका शायद टॉलरेंस लेवल भी हाई होगा, तो जब हम कॉपी कर रहे हैं, हम वर्बेटिम कॉपी कर रहे हैं या हम वहां भी अकल लगा रहे हैं कि यार ये उनके लिए ठीक है, हमारे ऑडियंस के लिए ठीक नहीं भी? आर वी डूइंग दैट सैनिटी चेक? चेतन, आपको क्या लगता Obviously, we are not doing that. So otherwise, Kanan Gill would not have attempted that joke either. So I think what is happening is कि I'll tell you what happened in Ranveer Ladavadia's case. It's very visible. He went to a comedy show in a comedy panel, and he was probably one of the two non-comedians there. अब उसको लगा कि मुझे कुछ ऐसा बोलना है जिससे कि आई शुड स्टैंड आउट, राइट? मैं आई शुड लुक फनी, आई शुड लुक लाइक समवन हु कैन पार्टिसिपेट इन दिस शो। आई थिंक दैट इज द रीजन ही सेड दैट, एंड ही डजंट हैव, obviously as you said, he doesn't have the brains to contextualize that to the Indian audience, या इसको थोड़ा चेंज कर दूं, इसको थोड़ा टोन डाउन कर दूं, किसी और तरीके से पूछ लूं जो मतलब इतना ऑन द फेस वो ना लगे। है? सो आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड देयर। नहीं, लोग दिमाग लगा रहे हैं इंडिया, अब अपन लोग, यार हम लोगों की एक बात काफी स्टैंड आउट करी है कितने टाइम से, हम लोग कॉपी करने में दिमाग नहीं लगाते। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर को देख लो,
बाहर से ट्यून उठाते थे, कुछ चेंज नहीं करते थे भाई, एकदम ट्यून कॉटना जो उठाया और उसका बना दिया। कोई नहीं तेरे जैसा, कोई मतलब ट्यून में थोड़ा सा चेंज कर दो यार, तुम भी म्यूजिक डायरेक्टर हो, तुम्हें पता होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा चेंज कर दो ना। सीधा पेल दिया, मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो अपन लोग नहीं लगाते दिमाग, ये हमारी थोड़ी सी खराब बात है। राज, आपको क्या लगता है कि हमें वो दिमाग लगाना चाहिए जब हम इंटरनेशनल कंटेंट कॉपी कर रहे हैं? उसमें भी वही दो मतलब पहलू वाली कॉपी बात करना है। चाहिए कि नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, वो ठीक है कि नहीं? कॉपी तो देखो करना चाहिए क्योंकि इंडिया वाले कर रहे थे, कॉपी Why करनी why है। reinvent the wheel? हाँ। वो हमारे डीएनए में है। आप लगाओ, मेरे पापा जब क्या कहते हैं स्कूल में थे तो मुझे बताते थे कि मैं जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देख के आया हूँ, वो डब होके आई है। तो हमारे यहाँ कॉपी तो 1940 से चल रही है। तो कॉपी तो हम हॉलीवुड की भी सारी पिक्चरें हम देख ही रहे हैं हिंदी में डब करके। अभी वो आई थी क्या कहते हैं, जब अलेक्जेंडर दी ग्रेट आई थी, मैं जब इंडिया में रह रहा था, तो मेरठ में वो लगी थी सिकंदर का आक्रमण, उसके नाम से चली थी। सारे हिंदी के इतने फनी डायलॉग थे उसके अंदर। राज भाई, आप अब लोग क्या कहते एक्चुअली हैं। हम लोग टर्मिनोलॉजी भी करेक्ट, हाँ मगर हम लोग टर्मिनोलॉजी करेक्ट यूज करनी चाहिए। इंडिया में इसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, कॉपी नहीं बोलते हाँ हाँ, तो वो क्या कहते हैं, मतलब वो कॉपी तो लोग जो कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब उस बंदे को वो सूट नहीं किया। वैसे दुनिया हाँ। बोलती जा रही है, दुनिया जहान के लोग जो बक रहे हैं गालियां, या इंडिया में इतने वैसे भी 70 लफड़े होते रहते हैं। एक लाइन ही क्या बोल दी भाई, ठीक है किसी को बोली है, वो बंदे को यार नाराज होना चाहिए। तुम्हें किस बात पे हम्म। नाराज होना है? तो मतलब कॉपी तो देखो होती रहेगी, वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। ऐसा नहीं है कि तो हम ही कॉपी कर रहे हैं। आप पिक्चर देखो, हवाई हाँ। जहाज पिक्चर आई थी, उसमें तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इंडिया वालों ने प्लेन बनाया था, गोरों ने हमसे कॉपी किया है। आप हाँ। पिक्चर में देखो, क्रिकेट में देख लो, लगान पिक्चर में हमने कॉपी करके तो लगान पिक्चर बनाई थी, उन्होंने मतलब क्या कहते हैं देखा है कि क्रिकेट कैसे से खेला जाता है। आज इंडिया हरा रहा है इंग्लैंड को सुबह शाम। तो कॉपी करना तो हमारी नेचर है। लेकिन ये है कि मतलब अकल लगाना है, कई बार चीजें चल भी जाती हैं। अब क्या कहते हैं, फॉरेस्ट गंप की कॉपी बनाई आमिर आमिर खान ने, लाल सिंह चड्ढा पिट गई वो। कई कॉपी बनती है, वो चल भी जाती है, वो नहीं भूल भी चली। जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। आई वो मीन टू बी कनन गिल ऑनेस्ट, का जो बोल रहे हो उसने कॉपी किया, हाँ उसका नहीं नाम आया, हाँ, कोई जानता नहीं है उसको ज्यादा। उस जिसको टाइम आप पे नहीं जानते हो जानता था। तो। हाँ, हाँ उस टाइम पे नहीं जानता था। एक्चुअली दिस इज द थिंग राइट, पीपल हु गेट बैंड और कैंसल्ड आर द पीपल हु पीपल बिलीव कि दे कैन मेक एन इम्पैक्ट, एंड यू नो कि इनकी बात कोई हाँ, सुन रहा है। अब उस टाइम पे कनल गिल की इतनी फॉलोइंग थी, उसको कोई सुन नहीं रहा था, तो उस पे इतना वो नहीं। रणवीर इलाहाबादी इसलिए नहीं फंसा कि उसने ये बात बोली है, वो इसलिए फंसा क्योंकि वो इतना बड़ा हो चुका था, पॉपुलर है। क्या कि उसको। और वो शो का भी इशू है, बहुत लोगों ने ये बात रेज करी है, हाँ। अगर ये शो ओटीटी पे होता किसी, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि ये यूट्यूब पे चला था, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सालों से है। आप कंट्रोवर्सीज पढ़ के देखो, चाहे वो सिंगर्स हो या कॉमेडियंस हो, आर्टिस्ट हो जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हम्म। हमेशा नाके लगे हैं और लगते रहेंगे। कॉपी लगते तो सब रहेंगे। मारते हैं, लेकिन ये है कि उनकी कॉपी और उनके जोक ज्यादा ऑफेंड कर जाते हैं कुछ तबके को। और ये नहीं, हम्म। हमने कौन सा इंडिया में पोल लिया है? अब ऑस्ट्रेलिया में हर बात पे रेफरेंडम होता है। आप रेफरेंडम करा लो इंडिया में कि उसका जो गलत था सही था, मैं आपको गारंटी देता हूँ 70% फेवर में आएगा वोट उसके। क्योंकि जिन्होंने देखा होगा, जो देहात के बच्चे होंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल आप गाँव में चले जाओ देहात में, वहां के बच्चे तो बोलेंगे हाँ बड़ा फनी है भाई, अंग्रेजी में बोल रहा है, उनको समझ में भी नहीं आया। वो तो वैसे हम्म। ही खुशियां देख देख के। 90% जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलेंगे यार ठीक है यार, मुझे क्या लेना देना। वहां अगेंस्ट खड़ा कौन हम्म। होगा उसके? तो वो तो बस हाँ। सोशल मीडिया पे हल्ला मच गया, 50 मीडिया चैनल चिल्ला दिया जी गलत है गलत है गलत है, हम सबने भी मान लिया। तो ठीक है, बस अब गलत ही होगा फिर। नहीं, रेलेवेंट पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन, जो भी अभी फ्यूचर में एस्पायरिंग स्टैंड अप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं हमारे अगले जनरेशन में, राज और चेतन, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? चेतन, आप, आई स्टार्ट विद यू, राज फिर मैं आपसे रैप अप करूंगी। This is like giving an advice to myself a little bit, but मेरे को लगता है कि so this is in context of what content एवरीथिंग। to go for, any or any just general advice. हाँ। Okay, so general advice में ये देना चाहूँगा कि पहले तो कि I feel a lot of people, I think ये बहुत, maybe this is more comedy specific, but a lot of people think कि
आपको अगर लगता है कि आप अपने दोस्तों के बीच में फनी हो, तो आप जाके कॉमेडी कर सकते हो। तो आई थिंक जस्ट रीथिंक दैट एंड बिफोर यू डू लाइक, पहले थोड़ा सोच लो कि व्हाट आर यू गेटिंग इनटू। इस आर्ट फॉर्म की डिमांड्स क्या हैं, इस Right. आर्ट फॉर्म के लिए कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या करना पड़ता है, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है एक आर्टिस्ट बनने के लिए। इट्स अ बिग डील। लाइक मुझे मुझे रियलाइज होता है जब फैमिली से अवे टाइम स्पेंड करना पड़ता है या टूर पे जाना पड़ता है। इट्स अ हार्ड लाइफ एंड it's one of those things that you can't master it. You have to keep learning for your entire life. So just think about that, what you're getting into. It looks funny on Instagram. It looks very what do you call it? It looks very starry and glamorous Hmm. on Instagram, but there's a lot of work that goes into it, and I'm still struggling with it. So I do feel like people should consider that. And secondly, I think it's a very cliche advice, but be yourself. Like a lot of people you see, and they're trying to, they don't sound like themselves on stage. They Hmm. sound like someone else. Their accent changes, their demeanor changes, the way they tone, their tonality changes. अभी recently I was giving किसी किसी ने मेरे से पूछा था, somebody who went to a raw comedy panel, उसने मेरे से पूछा कि मैं क्या करूँ, लाइक मेरी कॉमेडी में क्या दिक्कत है या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या जोक्स है। मैंने यू आर नॉट साउंडिंग, यू हैव अ ग्रेट स्टोरी। दिस गाय had had a story where his dad used to work for the army, and snipers used to be pointing guns at his home, and his dad would try to secure, and he's making jokes about that. That is comedy gold if you have a story like that. And he's still not coming across as himself, and it's not coming across as authentic on stage. He had good jokes, good content, just trying to copy someone else's style, just trying to sound white, right? Trying to sound like an Australian comedian. Don't do that. Be authentic. Authenticity sells. Talk about things you care about. Don't try to copy someone else's style. Don't try to copy someone else's um, theme of content, right? You are unique enough and you can make jokes about things that work for you. That's all. Those are the only two things I would say. Thank you, Chetan. Raj, आपका क्या मैसेज होगा एस्पायरिंग स्टैंड अप आर्टिस्ट के लिए? नहीं, मैं तो खुद ही एस्पायरिंग स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। Exactly. लेकिन ये है कि मतलब क्या कहते हैं, जो भी अपनी जर्नी रही है, मतलब जो चेतन बोल रहा है, ये भी क्या कहते हैं, आप क्रिकेट भी देख लो या कोई भी किसी तरीके का करियर यही है। आप उसमें जितनी मेहनत करोगे, अगर आपको मेहनत ही नहीं करनी, कॉपी मारना है, गालियाँ ही बकनी है सिर्फ कि ठीक है चलो भाई, पॉपुलैरिटी और कॉमेडियन बनने में बहुत बड़ा फ़र्क है। कई लोग बोलते हैं कि मैं कॉमेडियन हूँ, कई लोग बोलते हैं मुझे पॉपुलर होना है, तो पॉपुलर होने के अलग रास्ते हैं, कॉमेडियन बनने के अलग रास्ते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं चेतन से अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे, कई लोगों को सोचना चाहिए कि भाई आप मत करो कॉमेडी, क्योंकि आपके चक्कर में सबका नाम खराब हो रहा है। तो एडवाइस वही है कि मतलब क्या कहते हैं कि जबरदस्ती कॉमेडी करनी है, अगर नहीं हो रही तो मत करो, लोगों के देखने मत करो। हम लोग इसलिए कॉमेडी करते हैं, मतलब मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई साहब आप यहाँ कर लो, वहाँ चले जाओ। अब मतलब मैं बिना पैसे के कॉमेडी करने नहीं जाता अब। कोई मुझे बुलाता भी तो मैं नहीं जाता, क्योंकि मैंने कहा मुझे किस लिए पैसा नहीं चाहिए, पैसा कमाने के लिए। बट सामने वाले को अगर मेरी वैल्यू होगी तो मुझे पैसे देके बुला लेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए जाता हूँ, माँग रहा हूँ पैसा, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बिना पैसे के भी कर सकता हूँ जाके। तो वो मैंने अपना डिसीजन लिया था। तो लोगों को मेरी एडवाइस है कि अपनी वैल्यू डिसाइड करोगे भाई, आपको कॉमेडी क्यों करनी है। कई लोग हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे मिला हूँ कॉमेडियन से, वो ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं। एक बंदा बोल रहा मैं 8 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, 8 साल से एक ही लाइन का जोक है, वही सुना रहा, अभी लाइन डाला। मैंने तूने मेहनत कितनी करी है, आपने खुद मेहनत करी नहीं है, आप कॉमेडी बोल रहे, कॉमेडी बेकार है, रबिश फील्ड है। तो वो है कि एस्पायरिंग कॉमेडियंस के लिए हम लोग भी अपने आप को यही एडवाइस देते हैं एक दूसरे को कि भाई अगर आपको जब तक अच्छा लग रहा है, दिल है आपका अगर उसमें, तो कर लो। लोगों को कॉपी मत करो। अगर तुम्हारे मुंह से गालियां अच्छी लगती हैं तो दो, दे रहे हैं लोग गालियां जिनके मुंह से अच्छी लगती हैं और उनकी चल भी रही हैं। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, रसल पीटर ये एक है, इतनी दुनिया जहान की नेगेटिव बातें बोलता है, फिर भी आप लगा लो उसके $3-3 मिलियन का शो सोल्ड आउट है सिडनी में। कौन बच्चे लेके आ रहे हैं लोग, 13-13 साल के बच्चे आते हैं साथ में माँ बाप के, और वो जो बातें बोलता है, मतलब वो तो आप नॉर्मल सुनना नहीं चाहते, वो लाइव टीवी पे एबीसी पे टेलीकास्ट हो रहा है।
तो मतलब क्या कहते हैं, आपको जो सूट करता है करो भाई। मतलब मैं ऐसी एडवाइस नहीं देता लोगों को कि गालियां मत बको। तेरे मुंह से अच्छी लग रही है अगर निकल रही है नेचुरली, और लोगों को स्टोरी में अच्छी लग रही है दो, क्योंकि वो हमारे कल्चर का पार्ट भी है। ऑस्ट्रेलियन कल्चर में गालियां बड़ा नॉर्मल पार्ट है। यहाँ पे लोग ऐसी नॉर्मल गालियां बकते रहते हैं, इंडिया में ये बकते हैं। तो अगर तुम्हारे से निकलती है तो दो, जो तुम्हारे को सूट कर रहा है, जो रियलिटी है अपनी उसमें रहो आप, और क्या। Thank you. आप दोनों को thanks for your time. Chetan, do you want to add something? I was going to say one more thing. राज ने जो बोला वो मैं उसको थोड़ा सा मतलब उसमें फोकस देना चाहूंगा कि अगर आप लोग कि हम लोग हिंदी शोज करते हैं और हमारे शो में ना ऑडियंस बहुत ही कम आती है जब हम हिंदी शोज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े बड़े कमेडियंस आते हैं यहाँ पर, तो उनका कंटेंट ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो हमारे को देखने कौन आएगा, पर जो भी लोग आते हैं वो देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है जब हम लोग को देखते हो। तो अगर आप कभी कहीं हिंदी शो देखने जाते हो लोकल कमेडियंस को और वो आपको अच्छा नहीं लगता है और बहुत ज्यादा क्रिंज वर्दी लगता है, तो उसके बेसिस पे एनआरआई हिंदी कॉमेडी को जज मत करना, क्योंकि हर टाइप का कॉमेडियन एक बारी राज का शो आके जरूर देखना, तो आपको पता चलेगा कि क्या स्टैंडर्ड डिफरेंट है हर जगह का। तो क्या हो रहा है कि कई बहुत सारे लोग छोटे-छोटे कॉमेडी हाउसेस पॉप अप हो रहे हैं, जिनको कॉमेडी की कोई समझ नहीं है, उन्होंने ना कभी किया है, ना उनको स्ट्रक्चर का आइडिया है, वो कुछ भी कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं और जज कर रहे हैं कि भाई यहाँ के हिंदी कॉमेडियंस तो ऐसी कॉमेडी करते होंगे शायद। नहीं, ऐसा नहीं है, हर हर जगह डिफरेंट है। प्लीज़ गिव इट अ चांस। मेलबर्न में आए, राज का शो देखें, हमारे शो देखें, एक बारी थोड़ा लोकल कॉमेडियंस को चांस दो, बस ये कहना चाहूँगा, Absolutely. हिंदी में भी। हाँ। Thank you both of you. मैंने बहुत वक्त आपका ले लिया on a Tuesday night. But to our audiences, अगर आप पहली बार, if you're watching us for the first time, I hope you had a lot of important messages take away from Chetan and Raj. Please give local comedy a chance as well, because these guys work really hard. Bringing up content is not easy. So please watch them out. And if you've watched us for a while, I hope you like the content that I put on the table. Please reach out to me if you would like to get in touch with any of them. I'll be linking their profiles on the video as well. But till then, stay safe. And Chetan and Raj, best of luck for your future shows as well. Thank you. थैंक यू।